اپنے اس یوٹیوب چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ عنوان مرثیہ پر ہے۔ مرثیہ جس ادب کو رسائیہ ادب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو اصناف شاعری میں دیگر اصناف کی طرح جیسے غزل، نظم، مرثیہ، قصیدے، تمام ساری چیزیں لکھی گئیں، ویسے ہی جو ہے یہ لفظ رسائیہ جو ہے مرثیہ کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے کس زبان کا لفظ ہے۔ تو مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو ہے اکثر کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ کس لفظ سے یہ مشتق ہے۔ تو لفظ مرثیہ جو ہے رسا سے مشتق ہے، رسا سے مشتق ہے۔ تو دوسرا کوشچن یہ ہوگا کہ رسا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو رسا کے معنی جنرلی آہو بکا کے ہیں۔ آہو بکا، رونا رلانا، گریا بیان کر، گریا کرنا، یہ ساری چیزیں لفظ رسا سے مشتق ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ تو مرثیہ جو ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وصف کو بیان کر کے اس پر رونا، گریہ کرنا، نوح و ماتم کرنا، یہ جو ہے مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو مرثیے کے اقسام میں جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں، بالکل بیسک چیزیں کہ مرثیہ جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے کربلا سے جو مرثیہ لیا گیا ہے وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے، کربلائی مرثیہ، اور دوسرا جو ہے وہ شخصی مرثیہ ہوتا ہے، شخصی مرثیہ۔ لیکن عام طور پر اب جو ہے جو بھی لفظ مرثیہ استعمال ہوتا ہے وہ کربلا والوں ہی کے لیے مشتق ہے۔ مرثیہ کے معنی ہو گئے۔ بات کرتے ہیں مرثیہ کے اجزاء ترکیبی۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کو سب سے پہلے جس نے متعین کیا تھا وہ ہے میر مظفر حسین ضمیع صاحب۔ اور یہ مرثیہ جو ہے جیسے دیگر اصناف کی طریقے سے اس کی اسٹارٹنگ، اس کی ابتدا دکن سے ہوئی، دکن سے ہوئی۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اور یاد قابل غور ہے کہ یہ لفظ مرثیہ عربی زبان کا ہے، تو سب سے پہلا جو مرثیہ لکھا گیا وہ عربی زبان میں لکھا گیا تھا، عرب کی سرزمین پہ، اور اس کے بعد یہ مرثیہ فارسی ادب میں آیا۔ اردو ادب میں مرثیہ فارسی ہی ادب سے آیا ہے، فارسی زبان سے یا فارسی ادب سے اردو زبان کی مرثیہ آیا۔ یوں تو دکن کے شعراء میں جو بھی بیجاپور ہو یا گولکنڈہ کی سلطنتیں ہوں، چونکہ یہاں جو سلاطین اور عمرا تھے یہ خود شاعر تھے اور ان لوگوں نے شیعہ تھے، اور ان لوگوں نے اس مرثیہ کو کافی فروغ دیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کی جو ہے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں کس نے جو ہے رائے دیا یا مسدس کی شکل میں کس نے پیش کیا۔ تو مرثیہ کو سب سے پہلی بار مسدس کی حیثیت جو ہے کس نے دی تھی وہ ہے سودا۔ اکثر کے کام میں نام بھی پوچھا جاتا ہے، تو مرزا محمد سودائی فی الحال یاد رکھیں کہ سودائی کی وہ ذات ہے، ان کا اصل میدان قصیدہ ہے۔ سودائی نے سب سے پہلے مرثیے کو مسدس کی حیثیت میں پیش کیا تھا۔ اجزاء ترکیبی کی بات کریں کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، تو مرثیہ کے کل اجزاء ترکیبی 8 متعین کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ چہرہ۔ چہرے میں آئی دیکھتے کیا ہوتے ہیں۔ اس میں شاعر یا مرثیہ نگار مرثیہ لکھنے کے پہلے مناظر قدرت، مناظر قدرت یا مرثیہ کے متعلق تمام چیزیں، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو مرثیے کا چہرہ کہلاتی ہیں۔ اس میں ہر طرح کے مضامین بیان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میر انیس نے جو ہے
इस चेहरे में जो है अपने शायराना तहल्ली पेश किया है, अपने असलाफ या अपने आबा व अजदाद के मरसिया वो निगार की उनकी खुसूसियात का भी तस्करा किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो पहला जुज़ है इसमें जो है शायर जो है मनाजिर फ़ितरत, मनाजिर कुदरत या जहाँ का तस्करा होता है वहाँ के कुछ मनाजिर को पेश करता है। दूसरा है सरापा, इसमें करबला के मैदान में करबला से मुताल्लिक़ जो भी हीरो, जो भी किरदार पर मरसिया लिखा जाता है उसके तमाम औसाफ, अखलाक, किरदार, सारी चीज़ें इसमें कद्दो-कामत का तस्करा, उसकी बहादुरी का तस्करा या उसके लबो रुखसार या उसकी कद्दो-कदामत का जो है सरापा बयान किया जाता है, जिससे नाज़रीन को जो है उस किरदार से उन्स पैदा हो जाता है। तीसरा मरहला तीसरे नंबर पे है रुखसत। इसमें करबला के मैदान में करबला के शहीद ख़याम हुसैनी में आकर के आखिरी रुखसत हासिल करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसती चाहते हैं, तो इस पर शायर जो है कुछ अशार जो है इस पर जो है लिखता है। अगला जो है वो आमद पर ये होता है कि जब हीरो या शहीद होने वाला जब मक्तल में आता है, मक्तल में या जंग के मैदान में, तो उस पर जो है सामने जिस दुश्मन से उसको नबरदाज़मा होना है उसके तमाम मनाज़िर, क्या भगदड़ मची, फ़ौज में क्या हलचल हुई, या आने का अंदाज़ क्या था, ये सारी चीज़ें आमद पर या आमद ही में जो है कभी कभी जो है घोड़े की चाल, तलवार, ही सब सारी चीज़ों का बयान मद्देनज़र रखते हुए मरसिया निगार अशार कहता है। अगला मरहला जो इम्पॉर्टेंट है वो रजस। रजस जो है ये अरबों में एक रस्म थी कि कोई भी मद्दे मुकाबिल जब अपने हरीफ के सामने आता था तो वो अपने आबा व अजदाद असलाफ का तमाम जंगी या इस तरीके के सिफ़ात या ख़ानदानी पस मंज़र को पेश करता था। वैसे रजस का लुग़वी माना अगर देखा जाए तो ये तारुफ़ या इंट्रोडक्शन की होता है। ये अक्सर पूछा भी गया है कि रजस के क्या माना है, तो रजस का सीधा सा ताल्लुक़ तारुफ़ से है। तो ये भी एक जुज़ है कि जिसमें मद्दे मुकाबिल अपने हरीफ के अपने असलाफ, अपने ख़ानदान का तज़किरा करते हैं और उसी में फिर बहस मुबाहिसा होकर के जंग की स्टार्ट हो जाती है। तो अगला मरहला जंग का है। जंग में बहुत सारे अनावीन हो सकते हैं, जैसे घोड़े का तज़किरा, उसकी चाल का, या तलवार का चलना, जंग के सारे मनाज़िर, उसमें तमाम इस्तेमाल होने वाले आलात का तज़किरा इस जंग में हो जाता है। जंग के बाद शहादत का मरहला है। शहादत के बाद बैन जो है इसका मजमूई जो है ताल्लुक़ जो है बैन का ये आबो बुका से है। ये जो है बैन मरसिया की असल जान है। यही जो है मरसिए की, जिसे हमने पिछले क्लास में कसीदे का बताया था कि कसीदे की रूह जो है असल जो है मदा है, इसी तरीके से मरसिए की जो असल जान है वो बैन। बैन में शहीद हो जाने के बाद उसके लाश को खैमे में जब लाते हैं तो उसके अजीज़ व अक़ारिब उस पर क्या गिरियाकारी करते हैं, उस पर क्या बैन या बस बयान करके रोते हैं, ये सारी चीज़ें बैन में शुमार की जाती है। यह बात हमने बताई। बाकी मरसिए की नीयत पे अगर बात करें तो मरसिया शुरुआत में जो है हर तरह के मरासी उर्दू अदब में आए हैं, जैसे अभी बाद में आएगा कि नौसरहार मरसिया जो लिखी गई है वो मसनवी के फार्म में लिखी गई है, मसनवी की हियत में लिखी गई है। यूँ तो दक्कनी शुअरा की जब हम बात करते हैं तो हमें तमाम मरासी जो है 2 मिसरों पर, 3 मिसरों पर, 4 मिसरों पर, 5 और लास्ट में जो है 6 मिसरों पर जो है मुश्तमिल मरासी हम देखने को मिलता है। तो यूँ तो हर तरह के मरासी लिखे गए हैं हर मुसम्मत के फॉर्म में। अब देखते हैं इसमें कि सबसे पहले जो है मरसिए की झलक जो है किस मसनवी में नज़र आती है। तो सबसे पहली मरसिया की झलक मसनवी की बात हो रही है। अभी हमने आपको बताया अशरफ बियाबानी,
अशरफ बियाबानी, इनकी मरसिया का नाम, इनके मरसिए का नाम है नौसरहार। नौसरहार ये मरसिया जो है मसनवी के फॉर्म में लिखा गया है, याद रखिएगा। नौसरहार मरसिया जो है मसनवी की हियत में लिखा गया है और ये वाक़यात करबला पर है, मबनी है। तो इसमें करबला के वाक़यात किस्सा बयान हुआ है। तो ये जो है अशरफ बियाबानी, और यही अशरफ बियाबानी जो है उर्दू का सबसे पहला मरसिया निगार है, सबसे पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी। फिर हम जब शुमाली हिंद की तरफ आएंगे तो शुमाली हिंद में सबसे पहले बाज़ाब्ता तौर पर जिसने मरसिया लिखा है वो ज़ात जो है सौदा की है। तो इनका मैदान असल कसीदे के मैदान के बेताब बादशाह हैं, लेकिन शुमाली हिंद में जो हमें मरासी मिलते हैं सबसे पहले सौदा के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इजहार गम का मजमूई नाम क्या है। इजहार गम का मजमूई नाम जो है बैन के नाम से जाना जाता है, बैन। तो इजहार गम का मजमूई नाम बैन है। अब अगला क्वेश्चन कि किसी फर्द की मौत पर जो मरसिया लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो चूँकि शख्स के मुतालिक है इसलिए इस तरह के मरसिए को हम शख्सी मरसिया के नाम से जानते हैं, शख्सी मरसिया। चूँकि मरसिए में हर तरह के मौजू बयान किए जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा गया था कि किस सिन्फ सुखन में सबसे ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। तो यही मरसिया सिन्फ सुखन मरसियाई में सबसे ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। यूँ तो नज़्म में नज़ीर अकबराबादी का नाम लिया जाता है कि अल्फाज में अब तक नज़्म के मैदान में नज़ीर अकबराबादी ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। नज़ीर अकबराबादी की जो दूसरी ज़ात है उसके ये मीर अनीस हैं। मरासी मरसिए के मैदान में मीर अनीस लफ्ज़ों का। मीर अनीस के बाद जो है हम देखते हैं जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की वो शख्सियत है कि इसमें इनको लफ्ज़ों का बादशाह कहा गया, अल्फाज के जादूगर के नाम से मशहूर हैं, अल्फाज के जादूगर के तौर पर माने गए। यूँ तो जोश मलिहाबादी का असल मैदान मरसिया नहीं है, नज़्म निगार शोरा में शुमार होता है, लेकिन जोश के कुल 9 मरासी अब दस्तयाब हैं। ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि जोश मलिहाबादी के कुल कितने मरासियों का मजमुआ है। तो 9 मरसिया उन्होंने लिखा है, 9 मरसिए के मजमुए उन्होंने दिए उर्दू अदब को। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारसी शुअरा में सबसे ज़्यादा किस मरसिया को ने नाम पैदा किया। फ़ारसी शुअरा में, तो फ़ारसी शुअरा में जो है मुहतशिम नाम याद रखिएगा, इम्तिहान में आ सकता है। मुहतशिम का शामिल ये जो है फ़ारसी शुअरा में इसने सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया है। अगला क्वेश्चन कि दक्कन का पहला तवील मरसिया माना जाता है। दक्कन का सबसे तवील जो मरसिया माना गया वो है आपका यही ऊपर हमने बताया था नौसरहार, जिसको अशरफ बियाबानी ने जो है लिखा है, अशरफ बियाबानी मरसिया नौसरहार। अगला है कि दक्कन का पहला तवील मरसिया यही नौसरहार है। हाली ने किसका शख्सी मरसिया लिखा। हाली ने, अगला क्वेश्चन, हाली ने किसका शख्सी मरसिया लिखा। तो उर्दू अदब में बहुत सारे ऐसे अदीब हैं जिन्होंने अपने उस्ताद पर मरासी लिखे हैं, जैसे हाली के उस्ताद गालिब थे, इन्होंने गालिब पर मरसिया लिखा। इसी तरीके से
अल्लामा इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी थे, मरसिए दाग लिखा, दाग दहलवी। फिर उर्दू अदब में शख्स मरसिया पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे गालिब ने मरसिया लिखा। अगला क्वेश्चन मेरा होगा मरसिया गालिब में, मरसिया गालिब जो है इन्होंने अपने मुतबन्ना बेटे आरिफ, ये भी एग्जाम में नेट में पूछा जा चुका है कि आरिफ का असल नाम क्या था। तो आरिफ का असल नाम जो है ज़ैनुल आबिदीन था, ये नेट में पूछा जा चुका है। ज़ैनुल आबिदीन इसका नाम है। आरिफ के इंतकाल पर मरसिया जो है गालिब ने लिखा। तो मरासिए गालिब में कुल कितने बंद हैं, तो इसमें कुल जो है 10 अशआर हैं, 10 बंद हैं। गालिब ने किसका मरसिया लिखा? ये आरिफ और अपने बेटे हैं, इनकी बहन के भाई के लड़के हैं, उस पर उन्होंने मरसिया लिखा था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरसिया आरिफ किस हियत में लिखा गया? तो इसकी हियत गज़ल के फॉर्म में है, ये गज़ल के फार्म में, गज़ल के फार्म में है। अब अगला क्वेश्चन कि मरसिया आरिफ में कुल कितने अशआर हैं? तो इसमें भी जो है आपके 10 अशआर, 10 शेर। शुमाली हिंद की बात करें तो शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो ये शुमाली हिंद की जब बात आएगी तो नाम आएगा रोशन अली। रोशन अली हैं और इनके मरसिए का नाम जो है आशूर नामा। शुमाली हिंद का सबसे पहला मरसिया निगार रोशन अली को जो है मानो तस्लीम किया जाता है और उनके मजमूए का नाम आशूर खाना है। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा किस सदी में हुई? ये क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान में। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई, 16वीं सदी में उसकी स्टार्टिंग हुई। अगला क्वेश्चन कि लखनऊ में मरसिया का दौरे तामीर क्या है? यानी कि दौरे तालीम जो है तामीर मरसिए का, ये 19वीं सदी का मरहला है, 19वीं सदी का। जैसा कि आपको पता है कि मरसिया लफ्ज़ आते ही दो नाम जो है जो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है वो है अनीस और दबीर का। अनीस की जो है पैदाइश, ये भी आपका अक्सर इम्तिहान में पूछा गया है कि अनीस की जो है पैदाइश कहाँ हुई, या मकाम पैदाइश अनीस का क्या है? तो अनीस जो है पैदा होते हैं फैज़ाबाद में, ठीक है। तो जब 1800 जो है 4 में पैदा हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये 19वीं सदी में इसका जो है आएगा कि मरसिया दौरे तामीर जो है कंडीशन में वो 19वीं सदी। लखनऊ में मरसिया का दौरे तामीर अभी हमने बताया 19वीं सदी में। अगला है जदीद मरसिया की बुनियाद किसने डाली? जदीद मरसिया की बुनियाद किसने डाली? तो जदीद जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी ये जो है जदीद मरसिया निगार में इनका शुमार होता है। इन्होंने ही जो है बुनियाद रखी थी जदीद मरसिया। अब एक क्वेश्चन इम्तिहान में आ भी चुका है कि उर्दू का होमर किसे कहा जाता है? तो चूँकि होमर ये अंग्रेज़ राइटर एलिजी पर जो है काफ़ी शोहरत रखता है और इनकी तरह से मरसिए में जो है मीर अनीस ने जो कमाल पैदा किया है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो जो है मीर अनीस होगा। मीर अनीस अल्लाह मकामा, इनको जो है उर्दू मरसिए का होमर कहा गया, ठीक है। और जो इस पर और सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसको बाद में डिटेल बयान करते हैं। यहाँ पे इनको पॉइंट और बताना चाहूँगा कि इनका मीर अनीस का और मिर्ज़ा दबीर का अक्सर के नाम पूछा जाता है कि असल नाम क्या था। तो मीर अनीस का जो है असल नाम है मीर बबर अली, मीर बबर अली नाम था।
तखल्लुस इनका जो है अनीस है। और ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अनीस का पहला तखल्लुस क्या था। तो अनीस का जो है पहला तखल्लुस हज़ी के नाम से है। हज़ी हुज़्न से बना है हज़ी। मिर्ज़ा दबीर के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मकाम पैदाइश पे पूछा जाता है कि मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा दबीर जो है दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में। आज की इस वीडियो का यहीं पे ख़ात्मा करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।